everyone, this is Bushra Khan. Welcome to SAMAA podcast. Today we have a very special guest with us here. She is a symbol of bravery and courage. And yes, she is a true representative of 52% women in Pakistan. And yes, you heard it right. I'm talking about none other than Miss Sheharbano Naqvi, ASP Lahore. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Allah ka shukr. First of all, many congratulations. You're getting Qaid-e-Azam medal, police. So how do you feel about it? Allah का लाख लाख शुक्र है. God has been kind. मुझे तो ये बताइए कि जब ये एक वाक़या हुआ था, हॉरिबल वाक़या, और इतनी क्योटिक सिचुएशन हुई इचरा में कुछ दिन पहले, और फिर आपने बड़ी ब्रेवरी से उस खातून को रेस्क्यू किया, उसके बारे में बताएं प्लीज़. Basically, incident took place last Sunday. उसमें हुआ ये था कि 1:30 के करीब हमें कॉल आती है कि एक खातून है, उसको मॉब ने सराउंड कर लिया and they are नाउज़ुबिल्लाह thinking that she is wearing a shirt which has Quranic verses written on it. तो they're asking her to remove it. वो कह रहे हैं कि कमीज़ उतार के चेंज करो, बुरखा पहनो. जी जी. और उसने रेजिस्ट किया है एंड शी इज़ विद हर हस्बैंड. ये सारा कुछ तो कॉल में नहीं था, लेकिन क्रक्स ये है, कॉल वाज एनोनिमस. सिर्फ इतनी थी कि मॉब है और ख़ातून जो है उसने कपड़े कुछ ऐसे पहने हुए हैं जो नाज़ेबा हैं और उससे सराउंड कर दिया गया. जो रिस्ट्रिक्शन जो बनती थी वो इचरा पुलिस स्टेशन की बनती थी, और जो चौक था उसको हम पाकिस्तानी चौक कहते हैं. फॉर दोज हु बिन टू इचरा एंड फॉर दोज हु आर Lahoris, they would know that there are certain areas in Lahore, especially the ones which are जो old city के करीब हैं, they have very convoluted streets. तो बहुत पतली गलियाँ हैं. Similarly, ये भी एक बाज़ार, it's a huge commercial hub. इचरा जो है furniture market भी है, cloth market भी है, curtains भी हैं, tiles भी हैं. तो ये वो area जहाँ cloth market लगती है. अच्छा, अब पाकिस्तानी चौक is like a 4 or 5 minutes walk away from the main Firozpur road, on which the entire bazaar is. तो उधर हम लोग जब पहुंचते हैं तो हमने मेन पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और पैदल चलते हैं, और पैदल चल के 4-5 मिनट बाद पहुंचते हैं. What we see later on is something that everybody already knows, कि the mob had surrounded a shop जिसके दोनों shutters जो थे वो नीचे थे. The woman was huddled inside along with her husband, and they were asking her to change the clothes. So slogans chant कर रहे थे, वो basically religiously charged थे. They wanted, justice to be meted out there and then. तो उस scenario में what we had to do was to pick the woman up and take her out. So when you were rescuing the lady, आपने पूरी क्राउड को कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए. फिर आप उस खातून के पास गई, तो जब आपने पहली बार उस खातून को देखा, उनके कपड़े देखे, तो उसको देखकर आपको कैसा लगा? क्योंकि वो इतने लोग नाराज़ हो रहे थे, तो आपने खुद से क्या एनालाइज किया? I think ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, it's a very good question for future reference as well. मैं ये ऐड करूँगी कि when you're in such a situation where people have surrounded, for your safety as well and for anybody who's watching, when you're in such a situation where people either have surrounded you, God forbid, or have surrounded somebody else, do not argue with them. Do not tell them what is right and what is wrong. Right. Because had they been following what is right and what is wrong, that incident would not have taken place to begin with. Agreed. So you're dealing with an aggressive mob जो कि चार्ज है रिलीजियसली, या फिर वो सोशली भी हो सकता है, या वो पोलिटिकली भी हो सकता है. उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैज़ रिड्यूस्ड एंड हैज़ दिस थ्रेशोल्ड हैज़ गॉन सो लो दैट दे वुड नॉट बी सिविल if they are told that they're wrong. Yes, you're right, absolutely right. उस सिचुएशन के अंदर मेरा अपना पर्सपेक्टिव जो भी था वो नहीं था. उस सिचुएशन में सिर्फ मुझे ये पता था कि I'm an officer who's entering a situation where a woman is kept along with her husband. She might be killed, somebody might do something to the husband and I need to take them out. That was it. That's so true. मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपने उनको अबाया पहनवाया और फिर बाद से आप उनको लेके जा रही हैं. जी. तो वो रास्ता आपकी, मतलब जो ऑफिसर सिक्योरिटी जो गाड़ी होती है, वहाँ तक आपको लगा कि बीच में खुदा न खास्ता कोई खतरा हो सकता है, कोई आप पे हमला कर सकता है, तो उसकी कोई तैयारी थी? नहीं. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने पहले उसे बुरखा नहीं पहनाया. दिस इज़ वेयर इंटेलिजेंस कम्स इन एंड दिस इज़ वेयर अ वुमन कमिंग एज अ पुलिस ऑफिसर, नॉट दैट आई वुड बी प्लेइंग द वुमन कार्ड एवर इन माई सर्विस, उसका पर्सपेक्टिव आ जाता है. अच्छा, पर्सपेक्टिव ये आता है कि देयर सर्टेन things that trigger a certain strata of our society as far as their perception of a woman goes. Okay, we'll talk about it at length because I've heard that you have one of the best podcasts going around in town. So this would be the brilliant platform to state these things. Thank you, much appreciated. For the people. अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि the first thing that I saw was that her hair are dyed. Yes. So we have associated certain perception with a certain kind of woman.
लड़की के बाल डाए हुए में, लड़की ये कपड़े पहनती है, लड़की ये लेती है सर पे नहीं लेती है, लड़की इस तरह चलती है, लड़की ये वैसी है, लड़की ऐसी है. तो आई वाज लाइक दिस इज अ ट्रिगर फॉर एन एंग्री मॉब. सो फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज वी टाइड हर हेयर. वो कहती वो मैंने अंदर एंटर हुई हूँ तो उसने कहा मुझे डर आ रही है, मुझे मार देंगे. मैंने कहा बाल बांधो, पोनी है ठीक है, मुझे मार देंगे. मैंने कहा हस्बैंड को हमने छोड़ना है, आपका हस्बैंड अलग होगा आपसे. कहती हस्बैंड को ना लेके जाए. मैंने कहा बाल बांधो. जी जी बिल्कुल. वी टाइड हर हेयर. देन वी सॉ कि अगर इसका कुर्ता लंबा है तो टखनों से नजर आएगा, तो दैट वुड एक्ट एज अनदर ट्रिगर. उसने बुरखा हमने पहना दी है, नीचे से कोई देखेगा और स्लोगन्स दोबारा शुरू हो जाएंगे, नाउजुबिल्ला और उसे पढ़ जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर व्हाट वी डिड वाज कि हमने उसकी शर्ट को अड़ूंगा दिया, इधर हमने उसको टाई किया. उसके बाद हमने उसको अबाया पहनाया, फिर उसका सर जो है उसके ऊपर चादर डाली. हस्बैंड को अलग किया, एक और SHO के हवाले किया, कहा जिस तरह ही खातून को बाहर लेके जाएंगे तुमने दूसरी तरफ से हस्बैंड को लेके निकल जाना है, क्योंकि अटेंशन सारी हमारी तरफ होगी. बिल्कुल. अदरवाइज वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके हस्बैंड पे भी निकाल सकते हैं. You never know. Yes. कि इसकी बीवी थी, इसने कुछ सिखाया Such a challenging situation. अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये कि जब exacerbation of the event हुई है ना, later on I'm deviating, apologies for that. Exacerbation of जब event हुई है तो it primarily exacerbated because of a certain reason. जब हमारी बात हुई है उन लोगों से जो कि अब supposedly were the representatives of the mob, उन्होंने कहा जी खातून ने ये हरकतें की हैं, इस वजह से मतलब शी हैज़ कमिटेड अ रिलीजियस ऑफेंस. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं कि जी क्या हरकतें की हैं. मौक़िफ़ ये पेश किया गया कि खातून जो है उसने अंग्रेज़ी में हमसे बहस की है. उसने कहा है कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कपड़े कौन से पहनूँ ना पहनूँ. मेरा शौहर मेरे साथ है, वो मुझे बताएगा मैं कपड़े कौन से पहनूँ और कौन से ना पहनूँ. और उसने कहा कि तुम खुदा हो जो तुम मुझे बताओगे कि मैं कपड़े कौन से पहनूं और कौन से कपड़े ना पहनूं. ठीक है. तो आगे से कहा कि उसने मुझे खुदा कह दिया. मैंने कहा भाई उसने तुम्हें खुदा नहीं कहा, उसने कहा कि तुम हो नाउजुबिल्ला कि आप हैं जो बताएंगे. तो this is what exacerbated. So this is another perspective to the entire event, that we are so used to a submissive woman, that we are so used to an entity जिसको हम लोग जहाँ डंडा मारेंगे वो चली जाएगी, that it's really difficult for us to grapple with a woman who stands up for herself, is strong enough to say no, you cannot tell me what to do, you have no say, there are certain limits, you cannot cross or transgress those. अच्छा, इसका third aspect भी है, वो है कि why it exacerbated so much के अंदर कि इस तरह का similar event, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ इधर कि इस तरह का सिमिलर इवेंट 2 से 3 हफ्ते पहले हो चुका है इधर ही. एंड द पीपल हु वर द सपोज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मॉब फॉर सम ऑड रीजन एडमिटेड दैट दे हैव डन दिस बिफोर. उन्होंने कहा हम पहले भी तो ये कर चुके हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं हुआ, तो उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से अबाया उतार दिया. तो उस पर भी कैलीग्राफी हुई भी थी इसी तरह, उसने तो बड़े अच्छे तरीके से अबाया उतार दिया, तो और हमने उसको दूसरा अबाया पहना दिया था और वो माफ़ी मांग के चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ. तो हैड दैट वुमन रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट कि दिस इज हैपनिंग इन इचरा एंड पीपल आर डूइंग मॉरल पुलिसिंग एंड आर टेलिंग वुमन व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर इन वन ऑफ द लीडिंग कमर्शियल हब्स ऑफ द सिटी, ये इवेंट नहीं होना था. अगर वो पहले दफा अगर वो बेशक वहां से माजरत करके मसलियत के तहत चली गई थी, उसको चाहिए था कि पुलिस स्टेशन आती, रिपोर्ट करती इवेंट, सो ताकि पुलिस की नॉलेज में होता कि ये उनकी हदूद के अंदर हो रहा है. मोस्ट ऑफ द इश्यूज व्हिच अराइज इन आवर सोसाइटी, I wouldn't say they primarily rest upon the fact that the community is not helping, but I would definitely say that as a police officer we at times feel as if the community is reluctant to share information, and however such information needs to be shared. आप बिल्कुल ठीक बात करिए. अगर ये वाकया पहली दफ़ा ही ग्रिप में आ जाता तो ये दोबारा ना होता और इस पर अब जो एक्शन लिया गया वो पहले हो जाता. तो द क्राउड itself was so lenient कि उनको लगा कि it's a piece of cake, we can let anybody down and keep a woman submissive according to our points and reviews and opinions.